Thank you, ma'am, for giving your precious pearls of knowledge, wisdom, and experience. I hope our audience has benefited from your talks. Now, moving further, कहते हैं कि अगर हम अपनी बातों को अच्छे से ना रख सके तो फिर बात का अर्थ का अनर्थ हो जाता है. सो दैट मीन्स हमें अगर अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है तो हमें अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पे उसमें हमें अपना काम करने की बहुत ज़रूरत है. तो इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए we have invited today Dr. Nirja Nagpal to give our students certain tips to improve their communication skills. Dr. Nirja Nagpal has been teaching English language and literature in Hindi Mahavidyalaya for over 20 years and has been the seen V's best and weakest model of English during this time. Therefore, no distortion or mutation of language disturb her at all. Currently, she is TIC of NCWork and she is also the coordinator of IGNOU Center Aditi Mahavidyalaya. She is the co-author of the book called Business Communication, published in 2015. She has presented and published various articles and national and international platforms. She has translated stories from Hindi to English and has been teaching various communication courses since they were introduced in the DU around 6 years ago. She is researching on American literature, but feminism and interacting with students is closest to her heart. Ma'am, I now invite you formally to share certain tips with our students so that they can also improve their communication skills and achieve success in their life. Yeah. Thank you, Parul. I hope I'm audible to everyone. First things first, I'm grateful that Dr. Kanan Sharma, the director of RC2, is here with us. And I'm grateful to Dr. Mamta Sharma, who has given us this chance. And most of all, I'm grateful to Dr. Ritu, the coordinator of Center number 29061, for creating this opportunity about communication skills. And I would like to thank her for a very enlightening and a very practical session. तो निर्देश हुआ है मुझे द्विभाषी होने का, और ये भी निर्देश है कि स्टूडेंट ओरिएंटेड प्रेजेंटेशन रहेगी. तो इग्नू की खास बात ये है कि वो स्टूडेंट्स की ओर बहुत हर वर्ग के स्टूडेंट्स की तरफ उसकी रीच है, और मैं प्रयत्न करूंगी कि कुछ सरल पर कुछ इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स की आज चर्चा की जाए. तो साथ ही साथ में डॉक्टर रितु मैम से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो जो मेरी प्रेजेंटेशन जो मैंने उन्हें भेजी हुई है पीपीटी, जिसमें कुल 12 स्लाइड्स हैं, और मैं चाहूंगी कि वो शुरू करें. और क्योंकि यहाँ कुछ टेक्निकल इश्यूज हैं, और उसके बावजूद भी हमने ये सोचा कि ये प्रेजेंटेशन, ये स्लाइड्स आप तक पहुंचनी चाहिए, तो मैंने ये रितु मैम को मेल की हुई है. तो जब तक रितु मैम ये सेटअप कर लें और मेरी मेल खोल के देख लें, तो मैं कुछ जानकारी, कुछ इंट्रोडक्शन आपको देना चाहूंगी. अब आज ये बात करते हैं कि ये कम्युनिकेशन स्किल्स का मामला कहाँ से आया. तो ये जानकारी आपके लिए कोई नई नहीं है, ये बहुत पुरानी है, लेकिन इम्पोर्टेंट ये है कि समय समय पे आप अपनी स्किल्स को अपग्रेड करें, उनको इकट्ठा करें, और फिर अपनी पर्सनालिटी को एक बेहतर फीड दें, एक बेहतर खुराक दें, और आगे बढ़ते रहें. क्योंकि कम्युनिकेशन स्किल्स की इम्पोर्टेंस क्या है, ये सबसे पहले मैं शुरू करूंगी इस बात से कि शायद सैकड़ों नहीं, शायद हजारों, there are thousands of researches which tell you what is the importance of good communication skills, and how many researches can I quote? Maybe endless. I'll quote just one for you, and that is the American Trends panel, which conducted a research in October 2014, and it says, now there was a recce of a number of can be, yeah. Dr. Nirja, आपको presentation दिख रही है? Yeah, I can. Yes, I can. Yeah. Yes. Thanks. So I'll tell you to go to the next slide. I'll just ask you to move, but not right now. We'll stay with this. Yeah. So I am reading some data. बहुत सारी कलाएं होती हैं जीवन में. तो एक अमेरिकन US एडल्ट्स की एक स्टडी की गई,
और उसमें पूछा गया आर्ट कितना इंपॉर्टेंट है, 23%। 24% ने कहा, 25% ने कहा कि एथलेटिक्स इंपॉर्टेंट है, 58% ने कहा साइंस इंपॉर्टेंट है, 74% ने कहा लॉजिक इंपॉर्टेंट है, बहुत सिग्निफिकेंट है, 77% said teamwork was important, and mathematics was considered very important by 79%. रीडिंग बड़ी इंपॉर्टेंट थी, 80% लोगों ने कहा कि रीडिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो रही, 90% of those people said that communication skills were most important. तो अब सबसे पहले हम एक बड़ी साधारण बात पे आ जाते हैं, कम्युनिकेशन क्या है। हम सब सोचते हैं पता है कम्युनिकेशन क्या, सुनना, ये तो क्या है, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, नॉलेज, डेटा, आइडियाज, फीलिंग्स, थॉट्स, क्या होता है। एक मॉडल होता है, शैनन वीवर मॉडल है, या कई तरह के मॉडल्स है जो किताबों में पढ़ते हैं, किताबें लिखते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं। एक सेंडर होता है, डिकोडर होता है, एनकोडर, मैसेज, मीडियम, चैनल्स, वर्टिकल कम्युनिकेशन है, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन है, ग्रुप कम्युनिकेशन है, लाइन एंड स्टाफ थ्योरीज हैं। तो आप किताबें खोलते जाएं, आप उनके बारे में पढ़ते जाएंगे। लेकिन मेरी आज की प्रेजेंटेशन का फोकस कुछ अलग है। ये शब्दों को जानने से कुछ नहीं होगा, ये मॉडल्स को जानने से कुछ नहीं होगा। बहुत से लोगों का ये कॉमन बिलीफ है, ये पॉइंट्स आप देख पा रहे हैं मेरी स्क्रीन पे। बहुत से लोग सोचते हैं जी मैंने हिंदी बोल ली, मैंने अंग्रेजी बोल ली, मैंने तमिल बोल ली और मेरी कम्युनिकेशन हो गई। तो कम्युनिकेशन ये नहीं है। ऋतु नेक्स्ट। कम्युनिकेशन इससे कुछ ज्यादा है। तो अब हम कम्युनिकेशन के एक दूसरे एस्पेक्ट पे आ जाते हैं, जिसको आप लोग शायद कह सकते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। क्योंकि अगर आपका सारा स्ट्रेस भाषा पे रहेगा कि बस भाषा है और भाषा ही मुझे आगे ले जाएगी। डॉक्टर ऋतु नेक्स्ट स्लाइड कीजिएगा। एम आई ऑडिबल? नो, द वन बिफोर दिस, द वन बिफोर दिस, इससे पहले वाली। हाँ जी, इससे अगली। ठीक है, और इससे अगली। नेक्स्ट। ओके, या सो एक छोटी सी स्लाइड जो हमने बीच में मिस की वो थी कोलिन्स की डिक्शनरी की परिभाषा कि कम्युनिकेशन स्किल्स क्या हैं। तो कम्युनिकेशन स्किल्स बस सिर्फ इतनी है कि आप अपने आइडियाज, इमोशंस, इंफॉर्मेशन, थॉट्स, फीलिंग्स को प्रॉपर्ली कम्युनिकेट कर सके। बात एक वाक्य की है, लेकिन एक वाक्य पे बात खत्म नहीं हो जाती है। ये एक पूरा एक बहुत बड़ा डायमेंशन है जिसको हम डिस्कस कर सकते हैं। और इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं एक बड़ी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट पे जाना चाहती हूँ और मैं ये बताना चाहती हूँ कि हम 4 अक्षर इंग्लिश के सीख लें और 4 अक्षर हिंदी के और 4 और भाषाओं के, और हम सोचे हमें आ गया, तो एक बहुत बड़ा आयाम है जिसे आप लोग नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहते हो। और बहुत से लोग सोचते हैं जी उठना, बैठना, कपड़े पहनना और बस ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हो गया। लेकिन थोड़ा सा रेकी कर लेते हैं। ये सबसे पहले नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो है वो सबसे पहले आपका जो बॉडी है, योर Ritu, we've lost that screen. Can we have it again? Yeah. So the body has many parts. You know, the body has your face, the facial expressions, when you're scared. You know, some guys are lying down. बिस्तर पे बैठ के मेरी बात ना सुने मिस्टर चौधरी, अगर आप सुनना चाहते हैं तो बैठ के सुने। तो ये आप जो लोग लेट के सुन रहे हैं या गिर के सुन रहे हैं, तो क्या कम्युनिकेशन मिल रहा है मुझे? आप अपने शरीर का कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं? आप अपने शरीर का इस्तेमाल थोड़ा स्मार्टली कीजिए। आपका फेस कैसा एक्सप्रेशन देता है? डर जाते हैं तो सफेद हो जाता है, बहुत इंटरेस्टेड हो जाते हैं तो आपके चेहरे पे भाव दिखते हैं कि आप इन्वॉल्व हैं। तो बात फेस की है, आईज की है। आईज का तो कोई कम्युनिकेशन का जो दायरा है बहुत बड़ा है। आपने बॉलीवुड में न जाने कितने गाने सुने हैं, हजारों गाने आंखों पे लिखे गए हैं। तो और उसके बाद आप जब डर जाते हैं तो आपके लिप्स का आकार क्या होता है, और आप अपने हाथों को कैसे यूज करते हैं। आप हाथ बढ़ाते हैं, हिलाते हैं, गेस्टिकुलेट करते हैं। बहुत ज्यादा हाथ हिलाना भी ठीक नहीं है। लेग्स को कैसे मूव करते हैं, आपका टॉर्सो कैसे चलता है, आप अपने नेक को साइड में रखते हैं या उसको सीधा रखते हैं। तो पूरा जो एक बॉडी का एक पूरा प्रेजेंटेशन है, हाउ यू यूज योर बॉडी। तो बॉडी एक बहुत बड़ा टूल है जिसको आप स्मार्टली यूज कर सकते हैं। और इसके बाद जो नेक्स्ट
चीज है जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो जेस्चर्स हैं। तो अपनी हथेली को यूज कैसे करते हैं, फिंगर्स को यूज कैसे करते हैं, क्या कॉम्बिनेशन बनाते हैं। और इसके बाद प्रॉक्सिमिक्स। अब प्रॉक्सिमिक्स मैंने अपने स्टूडेंट्स से बहुत बार बात की हुई है। कुछ लोग हम उनसे दूर से बात करना पसंद करते हैं, कुछ लोगों को हम कहते हैं आप स्टेज पे ही रहिए वहीं ठीक है, कुछ लोगों को कहते हैं ठीक है सामने वाली कुर्सी पे बैठ जाइए, और कुछ लोग हैं जो हमारी गोदी में बैठ जाते हैं, बच्चे हैं, भाई बहन हैं, माँ बाप हैं, हम उनकी गोदी में बैठ जाते हैं। तो इसी प्रकार स्पेस की डिविजन भी 4 तरह की होती है। देयर इज इंटीमेट स्पेस, देयर इज पर्सनल स्पेस, सोशल स्पेस एंड पब्लिक स्पेस. So how you use space is the communication called proxemics. And then next is haptics. आप पसंद नहीं करते हैं कुछ लोग आपकी पीठ थपथपाएं, लेकिन आप पसंद करते हैं कुछ लोग आपकी पीठ जरूर थपथपाएं। तो ये सब कम्युनिकेशन के बड़े कारगर तरीके हैं। एंड देन यू नो अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज आर्टिफैक्चुअल कम्युनिकेशन। आप किस प्रकार के आर्टिफैक्ट्स यूज करते हैं, द काइंड ऑफ clothes you carry, the kind of briefcase you carry, the kind of phone you use, how you cut your nails, how you comb your hair, what kind of you know गैजेट्स यू यूज। तो ये पूरी आपकी पर्सनैलिटी का एक चित्र देते हैं। ये कहने का मतलब ये नहीं है कि आप एक्सपेंसिव चीजें यूज करें, आप महंगे महंगे फोन यूज करें, आप महंगी महंगी मोटरसाइकिल यूज करें, आप महंगे लैपटॉप यूज करें, पर वो सब आपकी पर्सनैलिटी के बारे में, आपकी कम्युनिकेशन के बारे में एक चित्र देते हैं। तो ये सब आप ठीक से मैनेज करें। नेक्स्ट प्लीज डॉक्टर रितु। या और उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट कम्युनिकेशन है जो कि जिसको हम क्रोनोमिक्स कहते हैं। क्रोनोमिक्स इज द कम्युनिकेशन टू डू विद द योर ट्रीटमेंट ऑफ टाइम। तो आपको एक मीटिंग के लिए बुलाया जाता है, आप 5 मिनट लेट पहुंचते हैं, आपकी फ्रेंड आपकी वेट कर रही है, आप आधा घंटा लेट होते हैं, या आपको किसी इंटरव्यू के लिए बुलाया गया, आप आधा घंटा पहले पहुंच जाते हैं, या आप 10 मिनट पहले खड़े हो जाते हैं। तो क्रोनोमिक्स एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि आपकी टाइम के प्रति या आप कैसे कम्युनिकेट करते हैं अपने एटीट्यूड दूसरों के लिए। यहाँ पर जबकि हम ये बात कर ही रहे हैं तो मैं ये कहूंगी कि कम्युनिकेशन एक ऐसी चीज है जो सदा होती रहती है। जैसे आप सांस सदा लेते रहते हैं, सांस लेना रुकता नहीं है जब तक हम जीवित हैं, और उसी तरह कम्युनिकेशन कभी रुकती नहीं है। आप सोचते हैं मैं तो कम्युनिकेट करूंगा ही नहीं, या मैं तो कम्युनिकेट करूंगी ही नहीं, तो ये भी एक अपने आप में कम्युनिकेशन है। सो व्हाट आई एम सेइंग इज दैट यू कांट नॉट कम्युनिकेट, यू विल कम्युनिकेट इवन इफ यू आर ट्राइंग टू कम्युनिकेट दैट आई डोंट वांट टू कम्युनिकेट। तो इसी प्रकार जो आपका ये ट्रीटमेंट है टाइम का, ये दूसरों के लिए कम्युनिकेशन है। आप अपनी किसी फ्रेंड को ब्लॉक कर देते हैं, जा मैं तेरे मैसेज ही नहीं पढ़ता हूँ, तो आप सोच रहे हैं जी मैंने तो कम्युनिकेट कर दिया, लेकिन कम्युनिकेट करना बंद कर दिया, लेकिन ऐसा नहीं है, आप फिर भी कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो इसके बाद में अगली एक इम्पॉर्टेंट कम्युनिकेशन टूल पर आ जाती हूँ, जो कि जिसको हम नॉन फ्लुएंसीज कहते हैं या साइलेंसेज कहते हैं। आप शायद स्टूडेंट्स ये सुन के हैरान होंगे जी साइलेंस कैसे कम्युनिकेट करता है। तो साइलेंस बहुत कम्युनिकेट करता है। साइलेंस इंपॉर्टेंट पॉजेज देता है बीच में, साइलेंस आपको एब्जॉर्प्शन का गैप देता है। कई बार आपका साइलेंस ना होता है, कई बार आपका साइलेंस का मतलब हाँ होता है। अब ये बड़ी अजीब बात है कि उसी साइलेंस का मतलब हाँ हो गया और उसी साइलेंस का मतलब ना भी हो गया। तो ये डिपेंड करता है कॉन्टेक्स्ट पे, और हम जानते हैं कि हर मूवमेंट, हर कम्युनिकेशन या बहुत सारी बातों का मीनिंग जो है वो रिलेटिव होता है, इट इज कॉन्टेक्स्ट बेस्ड, परिपेक्ष पे आधारित है। तो इसके साथ ही साथ मैं जिक्र करना चाहूंगी नॉन फ्लुएंसीज का। तो ये नॉन फ्लुएंसीज क्या है? नॉन फ्लुएंसीज छोटे छोटे फिलर्स होते हैं, वो आपको समय देते हैं कुछ सोचने का, कोई आइडिया लाने का। आप थोड़ी सी करके खांसी करते हैं, आप कहते हैं अच्छा ओके यू नो, या फिर आप क्या करते हैं थोड़ा से बालों को कंघी कर लेते हैं। कुछ लोग सिगरेट पीते हैं तो वो माचिस जलाने के लिए 2 सेकंड का समय ले लेते हैं कि चलो मैं कुछ सोच लेता हूँ। तो नॉन फ्लुएंसीज जो हैं वो आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को कॉम्प्लीमेंट करती हैं। और इसी प्रकार एक बहुत बड़ा जो फील्ड है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का, जो आप लोगों को बहुत ध्यान में रखना चाहिए, वो है पैरालिंग्विस्टिक्स। Now let's understand the meaning of paralinguistics. Linguistics is the science of language. You all know that. ये पता ही है। Now, para means like. लैंग्वेज नहीं है लेकिन बहुत सा वो लैंग्वेज जैसा है। अब कई लोगों को क्लास में सुनते हैं और सुनते सुनते सो जाते हैं। कई बार आप टीवी पे न्यूज सुन रहे होते हैं, बड़ी बोरिंग न्यूज होती है, आप सो जाते हैं, या फिर आप सुनना नहीं चाहते हैं।
और कई लोग इतने इंटरेस्टिंग होते हैं कि आप उसकी बात को, वही साधारण बात को एक मुंह से सुनना चाहते हैं और दूसरे मुंह से नहीं सुनना चाहते हैं. सो हाउ डज दैट हैपन? दैट हैपन्स बिकॉज ऑफ द टोन, बिकॉज ऑफ द वेरिएशंस. आप आवाज को बहुत ऊंचा करते हैं या फिर आवाज को नीचा कर देते हैं. कभी आप चिल्ला के बोलते हैं, कभी आप विस्पर में बोलते हैं. सो ऑल काइंड्स ऑफ वेरिएशंस आर क्रिएटेड. द टिम्बर, यू नो व्हाट इज टिम्बर? टिम्बर इज व्हाट यू सी इन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स. अब सलमान खान गाना गाते हैं तो वो किसी इंस्ट्रूमेंट से अपने टिम्बर को सुधार लेते हैं. तो टिम्बर तो ड्रम्स का भी होता है और गिटार का भी होता है. और बहुत फाइन जो आवाज की एक क्वालिटी है, दैट इज द स्टडी ऑफ टिम्बर. तो वोकल एलिमेंट्स, वर्ड स्ट्रेस है या वर्ड एम्फेसिस है, टोन है, पिच है, इन्फ्लेक्शंस हैं, ये सब मिला के आपको पैरालिंग्विस्टिक्स देती हैं. और सेम ही बात का मीनिंग बदल जाता है. आप अपने स्टूडेंट को कहते हैं वाह भाई बड़े अच्छे नंबर लाए, तो वाकई वो अच्छे नंबर लाया होता है. आप कहते वाह वाह क्या नंबर आए हैं तुम्हारे, तो पता होता है कि ये व्यंग है. तो जैसे आप कहते हैं आज तो बड़े सुंदर लग रहे हो, ओहो आज तो बड़े सुंदर लग रहे हो. तो दोनों चीजों को कहने का ढंग जो है, सेम वर्ड्स पर अलग पैरालिंग्विस्टिक्स है. तो ऐसा भी कहा जाता है कि 53 to 54% ऑफ योर मीनिंग, योर कम्युनिकेशन डिपेंड्स ऑन पैरालिंग्विस्टिक्स. शब्दों की इंपॉर्टेंस तो मेरे ख्याल 8 से 10% होती है और बाकी और फैक्टर्स होते हैं. तो एक लास्ट में अब मैं एक और पॉइंट है जो आपके सामने रखना चाहूंगी, वो है विजुअल्स और सिंबल्स का. ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का. बोलना नहीं है, शब्द इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम कलर्स, एक लाल झंडा होता है, एक हरा झंडा होता है, कुछ रंगों से आपको पता चलता है कि ये चीज ठीक नहीं है. ये नीला रंग है, डस्टबिन का हरा रंग है. और फिर सिंबल्स के बिना शायद आप सड़कों पे गाड़ी ना चला पाए, शायद एक्सीडेंट हो जाए. कहाँ हॉस्पिटल आ रहा है, कहाँ चढ़ाई आ रही है, कहाँ उतराई आ रही है, कहाँ रेलवे क्रॉसिंग आ रही है, कहाँ रेस्टोरेंट है, कहाँ पे गड्ढे हैं, कहाँ स्पीड ब्रेकर है, ये सब सिंबल्स हैं. नाउ दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. पूरे समाज की व्यवस्था. इनफैक्ट आप हैरान होंगे कि पुराने जमाने में जो कबीले थे, जो एक पहाड़ में रहते थे और दूसरे पहाड़ के पर रहने वाले कबीलों से वो कैसे बात करते होंगे? वो धुएं के सिंबल्स क्रिएट करते थे. अभी इग्नू के और कुछ स्टूडेंट्स एक पिकनिक पे गए थे एक पहाड़ पर, यहाँ से दूर पंचकुला के पास. तो वहां के लोग जो लोकल मजदूर थे, वो अपने गांव में बजता हुआ शंख सुनकर उठ चले कि गांव में कोई मृत्यु हो गई है. तो उनको वो शंख का पता था कि ये शंख कब बजाया जाता है. अब आप यूरोप जाएंगे, जब ये संचार के बहुत से माध्यम नहीं थे, टेलीफोन, मोबाइल फोन नहीं थे, तो चर्च की घंटी इस प्रकार बजती थी कि आपको पता चल जाता था कि अब क्या है, कोई खुशी है या कोई खतरा है. तो इस प्रकार ये जो सिंबल्स हैं, ये आज भी और पहले भी हमारी सभ्यताओं को, हमारी सोसाइटीज को बांधने में बहुत मदद करते थे. रितु जी अगली स्लाइड. सो यहाँ पे मुझे एक पीटर गुबर नाम के रिसर्चर हैं, इनकी बात बहुत इंपॉर्टेंट लगी कि लैंग्वेज इज अ मोर रीसेंट टेक्नोलॉजी. ये तो अभी का आविष्कार है. जब बाइबल में भी कहा गया है देयर वाज द टावर ऑफ बेबल, तो वो टावर बनने से पहले या फिर भाषा का आविष्कार होने से पहले, जब हम बंदर थे, जब हम पेड़ों पे घूमते थे, या फिर हमने चलना ही सीखा था, सीधे खड़े होना सीखा था, हम होमो सेपियंस बने थे, तो उससे पहले ये बॉडी लैंग्वेज, हमारी आंखें, हमारी एनर्जी, और अगर हम बोल भी रहे हैं, बोलने से पहले भी हमारी लैंग्वेज, हमारी एनर्जी ये हमारे ऑडियंसेस को मिल जाएगी. और यदि आप देखें अमेरिका में, यूरोप में बहुत से स्कूल्स ऐसे हैं. भारत में प्रिया वॉरिक करके एक महिला है, और अमेरिका में डेल कार्नेगी की इंस्टीट्यूट है. और इस प्रकार बहुत से मोटिवेटर्स हैं, बहुत से लाइफ कोचेस हैं, बहुत से लाइफ डिजाइनर्स हैं जिनके बारे में हम पढ़ते हैं, जिनसे हम मिलते हैं, और वो यही आपको सिखाते हैं कि कैसे आप अपनी बॉडी को ट्रेन करें, कैसे आप अपनी बॉडी में एनर्जी पैदा करें, और वो शब्दों से पहले आपकी एनर्जी, आपकी नेगेटिविटी, आपकी पॉजिटिविटी लोगों तक पहुंच जाए. नेक्स्ट स्लाइड रितु. कैन आई हैव द नेक्स्ट स्लाइड डॉक्टर रितु? Yeah, so what happens now? This slide is the smallest, but let me say it is the most important one for you. आज एक
शताब्दी का चौथा हिस्सा मुझे पढ़ाते हुए हो गया, लगभग 25 साल हो चुके हैं। और मैं देखती हूँ कि पुअर कम्युनिकेशन स्किल से क्या होता है, बहुत से लोगों को जॉब्स नहीं मिलती। हम दिल्ली यूनिवर्सिटी में या इग्नू में और अब एनसीएफसी में जुड़ी हूँ, हम देखते हैं लोग ग्रेजुएट हो जाते हैं, वो एक रिपोर्ट नहीं लिख सकते, एक इंटरव्यू ड्राफ्ट नहीं कर सकते, एक समरी नहीं बना सकते, उन्हें अच्छी जॉब्स नहीं मिलती। बहुत से लोगों के परिवारों में कजन्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ लड़ाइयाँ रहती हैं, कुछ बुरा बोल दिया, कुछ नेगेटिव बोल दिया, बिजनेस फेल हो जाते हैं, फ्रेंडशिप नहीं बन पाती, रिश्तों का हम चयन नहीं कर सकते। तो ऐसा हम बिल्कुल सोचने का खतरा नहीं ले सकते हैं कि कम्युनिकेशन स्किल्स तो क्या है, यू नो, 4-5 अंग्रेजी के वाक्य बोल लिए या फिर 4-5 हिंदी के वाक्य बोल लिए या लिखना पढ़ना आ गया, तो ऐसा नहीं है। कम्युनिकेशन स्किल्स के जो फॉलोआउट्स हैं वो बहुत दूर तक जाते हैं। और कम्युनिकेशन की जब हम बात करते हैं, मैं आपको बहुत सारी परिभाषाएं भी दे सकती हूँ, लेकिन वो हम एक्टिविटी क्लासरूम के लिए रखते हैं अक्सर। तो मेरे पास बहुत सी परिभाषाएं हैं, मैथ्यूज की है, समर एंड जूनियर की है, विलियम स्कॉट की है, और उन सब में यही एक मुख्य बात निकल के आती है कि हाउ यू एक्सचेंज आइडियाज, फैक्ट्स, opinions, emotions between two people, two or more people, between two organizations, and so on. तो कम्युनिकेशन स्किल्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है सॉफ्ट स्किल्स, जिसका जिक्र आपको अभी डॉक्टर रितु ने अपने प्रेजेंटेशन में किया। कैन आई हैव द नेक्स्ट स्लाइड प्लीज? या, सो how do we have good communication skills? In fact, it have been the main core of my presentation, so I'll spend a couple of minutes here, and what I just told you was the background. So you have to have confidence, you know, and soft skills. So when I say hold that pencil between your teeth, so when you hold the pencil, you know, you have to smile. You can't hold the pencil without smiling. So look into the person's eyes, be pleasant, and start smiling, you know. And yeah, कुछ महीने पहले कहा जाता था कि हाथ मिलाइए, आज नहीं कहेंगे हम हाथ मिलाएं, आज बस हाथ जोड़िए। तो आप हाथ ऐसे जोड़ते हैं या ऐसे जोड़ते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ये देखना होगा आपको। तो आप स्माइल कीजिए, आंखें मिलाइए लोगों के साथ और उनकी तरफ ध्यान दीजिए, फोकस कीजिए। अब ये सॉफ्ट स्किल्स होती क्या है? ये एक नया कॉन्सेप्ट कुछ सालों से मैं सुन रही हूँ सेमिनार्स में, कॉन्फ्रेंसेस में। तो ये हार्ड स्किल से अलग है। आपको स्कूटर ठीक करना आता है, आपको बिजली के प्लग ठीक करने आते हैं, आपको जो है ना हारमोनियम बजाना आता है, या आपको जो भी काम आते हैं, या आपको पढ़ाना आता है, लेकिन वो हार्ड स्किल्स हैं। सॉफ्ट स्किल्स अलग है और ये नॉन टेक्निकल हैं और ये हमारे अंदर होती हैं। ये हमारी पर्सनालिटी, इंट्यूशन, एटीट्यूड्स का पार्ट होती हैं। आप एक अच्छे काउंसलर हैं या एक अच्छे एजुकेटर हैं, ये सब सॉफ्ट स्किल्स का पार्ट होते हैं। और ये स्किल्स ऐसा नहीं है कि ये रुक जाती हैं, दे आर यूजुअली ट्रांसफरेबल, दे हैव टू बी ट्रांसफरेबल। और सॉफ्ट स्किल्स की कुछ जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वो है लीडरशिप, रिस्पॉन्सिबिलिटी, टीम वर्क, प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड एंड कम्युनिकेशन। प्रॉब्लम सॉल्विंग पे निधि गोयल मैम आपसे बात करेंगी। और नेक्स्ट स्लाइड रितु। एंड ये सब जो मैंने आपके सामने लिख के दिया है, ये भी सॉफ्ट स्किल्स का ही पार्ट है कि हम कैसे अपने कोलीग्स के साथ मीनिंगफुली इंटरेक्ट करें, एग्रेसिव ना दिखें, हर समय नेगेटिव ना दिखें, उन्हें नीचे नहीं दिखाना है। भरे रहते हैं हम लोग जेलेसी से, एनवी से, तो उससे कुछ मिलने नहीं वाला है। गुड कम्युनिकेशन इज वी इंटरेक्ट मीनिंगफुली एंड वी स्पीक वेल, वी स्पीक क्लियरली, वी स्पीक विद नॉलेज। अब हवा में बात करने का फायदा नहीं होता है, आप कितनी देर तक हवा में जाले बुन लेंगे? यू हैव टू हैव सॉलिड नॉलेज। और आजकल एक नया आयाम जुड़ गया है सॉफ्ट स्किल्स में, आपके ऑनलाइन एटिकेट्स। मैं देखती हूँ फेसबुक पे या ट्विटर पे लोग ट्रोल करते हैं, क्योंकि ट्रोल करना संभव है। आप अपने कुर्सी पे आराम से बैठे हुए हैं, आप अपने घर में बैठे हुए हैं, आप किसी भी तरह की बुरी बातें कह सकते हैं। तो वो एटिकेट्स चले गए हैं, तो उन्हें वापस लाना जरूरी है। अगर वापस के अलावा उन्हें कल्टीवेट करना जरूरी है। तो हम किसी को ट्रोल ना करें, वी हैव लेस एग्रेशन, वी डोंट डिमीन अदर्स, एंड वन वेरी इंपॉर्टेंट सॉफ्ट स्किल इज मोटिवेशन। तो मोटिवेशन दिखना भी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप मोटिवेटेड हैं मगर नजर नहीं आ रहा है, तो वो दिखना चाहिए। पॉजिटिविटी दिखाइए, ऑनेस्टी दिखाइए, कमिटमेंट, जेन्युइन कंसर्न दिखाइए। अगर आप लोगों में एक केवल सरफेस कंसर्न रखते हैं और आप सोचते हैं कि मैं इन्हें मूर्ख बना लूंगा, तो कोई मूर्ख नहीं बनता है। सब जानते हैं कि आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं उनमें कितनी गहराई है।
whether you're really concerned. आपके चेहरे से, आपकी आंखों से, आपकी बात से पता चल जाता है. And you, one very important soft skill is your leadership. So a leader should have positive attitude. Negative attitude होगा तो आप leader बन नहीं सकते. Can I have the next slide, please, Dr. Ritu? Yeah. So you have to find solutions. ये सब बातें आपको लगता होगा कि हर टीचर, हर काउंसलर ये बातें आपको सिखाता है, लेकिन जब आप इन्हें प्रैक्टिस में लाएंगे तो आप रियलाइज करेंगे कि आपका लाइफस्टाइल और आपकी जो परफॉर्मेंस है, जो बिहेवियर है, जो अचीवमेंट है, वो सब बहुत इम्प्रूव हो जाता है. तो लोग आप में भरोसा करें और आपके अंदर कॉन्शियस हो, आप अपनी अंतरात्मा के खिलाफ ना जाएं, टीम वर्क करें. बहुत से लोग अकेले काम करना चाहते हैं. Now this is one of the most harmful, I would say, soft skills. जो इंसान है वो अकेले रहने के लिए पैदा नहीं हुए हैं. आज के युग में भी आप देखेंगे कि WHO भी यही कह रहा है, सॉलिडारिटी, सॉलिडारिटी, सॉलिडारिटी. हर देश कह रहा है कि जो देश पहले दवाई बनाएगा वो दूसरे देश से उसका टेक्नोलॉजी शेयर करेगा. और कोई भी समाज का या इस दुनिया का वर्ग एक दूसरे के बिना जी नहीं सकता है. कुछ लोग खाना बनाते हैं, कुछ लोग कपड़े धोते हैं, कुछ लोग रिसर्च करते हैं, कुछ लोग पढ़ाते हैं, कुछ लोग सड़कें बनाते हैं. एक दूसरे के बिना कोई जी नहीं सकता है. तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट एक सॉफ्ट स्किल है कि आप टीम वर्क में विश्वास करें, ऑनेस्ट टीम वर्क में आप फ्लेक्सिबल रहें और आप नेगोशिएशन स्किल्स भी रखें. नेगोशिएशन स्किल्स को हम क्लासरूम में बहुत लंबे स्तर पर लेते हैं, यहाँ नहीं लेंगे. करीबन 22 से 23 नेगोशिएशन स्किल्स होती हैं जिनका जिक्र हम कभी और किसी सेमिनार में करेंगे. डॉक्टर रितु, कैन आई हैव द नेक्स्ट स्लाइड प्लीज? या, सो हाउ डू यू get soft skills? They don't come to you in a day. They don't even come to you in a week. You know, Rome wasn't built in a day. Delhi wasn't built in a day. So you have to persist, and you can't give up. You always have to keep your chin up, and you have to keep moving. So you observe people. अब देखो आपका टीचर कैसे बोल रहा है. आप देखिए आपकी कॉलोनी में जो काउंसलर है वो कैसे खड़ा होकर लोगों से बात करता है. आप देखिए कि आपकी नानी कितने कॉन्फिडेंस से लोगों से डील कर लेती थी. आप देखिए वो कैसे अंग्रेजी बोलता है. आप दूसरे लोगों को देखिए वो कितनी अच्छी हिंदी बोलते हैं या कितनी अच्छी भाषा का प्रयोग करते हैं. सो यू हैव टू एमुलेट, यू हैव टू प्रैक्टिस. आप अपने घर में आइए, शीशे के सामने खड़े हो जाइए, यू नो, and practice your English, practice your Hindi, practice your Tamil, practice your singing, you know, and you have to persist. And then you have to keep on repeating. You do it once, you do it twice, you do it 100 times, you do it 1,000 times, but you have to keep doing it. तभी आप soft skills को अपने अंदर absorb कर सकते हैं. So can I have the last slide, Ritu? Yeah. Okay. Now this is the second last, not the last one. एक चीज जब हम छोटे थे, स्कूलों में पढ़ते थे, अब वो स्कूल में पढ़े हुए कई दशक गुजर गए, हमारे सिलेबस में था जी रीडिंग, राइटिंग बस, और अरिथमेटिक. ये सब लिसनिंग विसनिंग क्या होता है, ये हमारे स्कूल के सिलेबस में था ही नहीं. आज भी मैं देखती हूँ कि बहुत कम सिलेबाई ऐसे हैं जहाँ पर लिसनिंग के बारे में अब थोड़ी थ्योरी आने लग गई है. लोग सोचते थे जी हम पढ़ लेते हैं, लिख लेते हैं और बोल लेते हैं, और बोलना बहुत है. हम ये देखते हैं कि ज्यादा एम्फोसिस लोगों का बोलने पे है. मुझे ये चिंता रहती है कि मैं बोल लूँ, यू नो, मेरी फ्रेंड्स को चिंता रहती है मैं बोल लूँ. मेरे स्टूडेंट्स कहते हैं जी हमारी बात सुनो, हमारी बात सुनो. तो और बोलना इतना ज्यादा हो जाता है कि चारों तरफ नॉइज हो जाती है. तो एक बड़ी इंपॉर्टेंट किताब है जो मैं पढ़ना शुरू कर चुकी हूँ, Who's Got Your Back, कीथ फर्राजी की किताब है. इसमें 4 तरह की लिसनिंग का बात की गई है. वन इज द रिमूव्ड काइंड ऑफ लिसनिंग, जब आप बिल्कुल डिटैच होकर सुनते हैं, सामने वाले ने बोला आप उसको वॉमिट बैक कर देते हैं, यू नो, दैट्स लाइक पैरटिंग, उसमें कुछ गहराई नहीं होती. और सेकंड इज रिएक्टिव, थोड़ा ध्यान दे दिया ठीक है. थर्ड इज रिस्पॉन्सिबल, जो एक बड़े ऑफिशियल तरह की लिसनिंग होती है. ठीक है, आपने कोई बात कही, आपको चिट्ठी का जवाब मिल जाएगा, आपकी बात अधिकारी सुन लेंगे, कोई एक्शन थोड़ा बहुत ले लेंगे. और चौथी तरह की लिसनिंग है जो मुझे लगता है हमारी सबका टारगेट होना चाहिए, दैट इज द रिसेप्टिव काइंड ऑफ लिसनिंग, विच इज द डीपेस्ट काइंड ऑफ लिसनिंग, एंड दैट इज एम्पैथेटिक. एम्पैथेटिक की स्पेलिंग गलत है, इसे इग्नोर करें. इंग्लिश टीचर की स्पेलिंग गलत हो जाना बहुत बड़ा क्राइम है, लेकिन नहीं है. मैंने ये गलती आप लोगों के लिए जरूर की है. और मैं ये कहना चाहती हूँ कि I will come to that point later about mistakes, but first I'll conclude my point about listening.
Because as you listen, this is my personal experience, that you bond with people, you move towards negotiation, towards understanding, towards stress reduction, and towards solution. Without listening, nothing happens. You know, people don't listen to each other, parents don't listen to each other, brothers and sisters don't listen to each other. हमें लगता है communication skills का मतलब है बोल पाना, लिख पाना, रिपोर्ट बना देना, ऐसे बढ़िया सा लिख देना और लेटर्स लिख पाना, ये सब. लेकिन कम्युनिकेशन स्किल्स की शुरुआत है सुनने से, रिसेप्टिव लिसनिंग से, जो कि बहुत जरूरी है. Could I have the next slide, please? Yeah, so I have now listed a few tools for you. There are a number of tools. मैंने उनके बारे में बहुत सोचा, क्योंकि ये स्टूडेंट्स का एक फोरम है और इग्नू में बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनकी सारी एजुकेशन ऑनलाइन होती है, गैजेट्स बेस्ड होती है, वो मोबाइल फोन्स पे और लैपटॉप्स पे अपना काम करते हैं. तो दो मैंने एप्स देखी, एक है फ्री डिक्शनरी बाय फारलेक्स और एक है dictionary.com. ये बड़े ही इंपॉर्टेंट टूल्स हैं और ये आपकी वोकैबुलरी को अपलिफ्ट करते हैं. अब रोज सवेरे उठते हैं, आपके फोन में ये एक नया वर्ड और 16-17 वर्ड्स आपको प्रैक्टिस के लिए देते हैं. और जब आप ऐसा करते हैं और अब आप बार बार करते हैं तो आपकी प्रैक्टिस हो जाती है. और आपको एक और काम करना चाहिए, यू शुड प्रिपेयर अ नोटबुक जहाँ पे आप अपनी सारी वोकैबुलरी को नोट करें जो आपने नया सीखा है. और इस सब एक्सरसाइज का एक फायदा है, आपको पता होगा कि वोकैबुलरी दो तरह की होती है. एक होती है रिसेप्टिव वोकैबुलरी और दूसरी होती है प्रोडक्टिव वोकैबुलरी. रिसेप्टिव वोकैबुलरी वो है जो आप सुनते हैं, आपको लगता है यार ये शब्द मैंने सुना हुआ है, कुछ कुछ समझ आ रहा है पर मैं क्या करूं. और प्रोडक्टिव वोकैबुलरी वो होती है जब आप किसी वर्ड को सुनते हैं और उसको आप प्रयोग कर सकते हैं. ये बिल्कुल वैसी ही बात है जैसे आप किसी अपने दोस्त के साथ या सहेली के साथ 5वीं-6ठी क्लास में पढ़ते थे और 10वीं क्लास तक आपने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया. जब आपने उसको 11th क्लास में देखा, आपको लगा ये स्टूडेंट कहीं देखा हुआ है पर इसका नाम याद नहीं आ रहा, इसका घर भी याद नहीं आ रहा. तो वो हो गया रिसेप्टिव वोकैबुलरी. आप शब्द को देख रहे हैं, पहचान रहे हैं, लेकिन आप उससे ज्यादा नहीं बढ़ पा रहे. प्रोडक्टिव वोकैबुलरी वो है जब आप किसी अपने दोस्त को 5वीं क्लास में मिले, फिर 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं और फर्स्ट ईयर तक आप उसके साथ ही रहते हैं. आप उसको रोज मिलते हैं, बैठ के खाना खाते हैं, बातें करते हैं, हालचाल पूछते हैं. और अब जैसे ही उसको एक दिन बाद मिलते हैं तो आप कहते हैं हाँ ये तो ये तो धर्मेंद्र है, इसको तो मैं 8 सालों से जानता हूँ, ये तो मेरा दोस्त है. तो वो शब्द भी कुछ दोस्तों की तरह होते हैं. शब्दों को आप इग्नोर करेंगे तो वो रिसेप्टिव ही रह जाएंगे, आप उनकी शक्ल पहचान पाएंगे, आप उन्हें इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे. लेकिन अगर आप शब्दों से पक्की दोस्ती करेंगे, अपने रोज यूज करेंगे, दे विल गो इनटू प्रोडक्टिव वोकैबुलरी. तो हमारे जीवन का एम यही होना चाहिए कि हम 30 दिन में कम से कम 30 वर्ड सीखें और उनमें 30 वर्ड जो हमारी रिसेप्टिव वोकैबुलरी में आ जाते हैं उनमें से कम 15 या 20 शब्द हर महीने हमारी प्रोडक्टिव वोकैबुलरी में आ जाएं. तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी एक्सरसाइज है. और वोकैबुलरी इज अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ योर लैंग्वेज. इफ यू डोंट हैव वर्ड्स, you really don't know what to say. Okay. And the second point, and my second last point for today, is about the intrapersonal talk, जो कि डॉक्टर रितु ने आपसे जिक्र किया था. इंट्रापर्सनल टॉक वो है जो हम अपने आप से बात करते हैं. दो तरह की टॉक्स होती हैं, एक इंटरपर्सनल और दूसरी इंट्रापर्सनल. इंटरपर्सनल टॉक वो है जो हम दूसरे इंसानों से करते हैं, लेकिन इंट्रापर्सनल वो टॉक है जो अपने आप से करते हैं, जिसको आप रिफ्लेक्शन भी कह सकते हैं, सेल्फ टॉक भी कह सकते हैं, कभी कभी लोग उसको मेडिटेशन भी कह देते हैं. कभी आपने सड़कों पे देखा होगा कोई इंसान अपने आप से बोलता हुआ जा रहा है, आप हंसते हैं, अरे ये तो अपने आप से बातें कर रहा है. बस फर्क ये है कि वो अपने आप से जो बात कर रहा है उसका मैनिफेस्टेशन लाउड है, वो उसको कंट्रोल नहीं कर सका. आप लोग अपनी इंट्रापर्सनल टॉक को अंदर रख लेते हैं, यू डोंट मैनिफेस्ट इट. बट इंट्रापर्सनल टॉक is a prerequisite for the interpersonal talk. यदि इंट्रापर्सनल टॉक ना हो तो इंटरपर्सनल टॉक नहीं हो सकती. आप बात ही नहीं कर पाएंगे यदि आप आत्ममंथन नहीं करेंगे. अब बात ये आती है कि इंट्रापर्सनल टॉक और कम्युनिकेशन स्किल्स क्या क्या जुड़ाव है. बहुत गहरा जुड़ाव है. अगर आपकी इंट्रापर्सनल टॉक की क्वालिटी पॉजिटिव है तो आप पॉजिटिव बातें करेंगे. अगर आपकी इंट्रापर्सनल टॉक में आप कहते हैं मैं
मैं स्वस्थ हूँ, मैं ठीक हूँ, मैं इस स्थिति को संभाल सकता हूँ, मैं लोगों से अच्छी बात कर सकता हूँ, मैं पढ़ाई कर सकता हूँ, तो ये आपकी सेल्फ एस्टीम को रेज करेगा. सो द काइंड ऑफ कम्युनिकेशन यू हैव विद योरसेल्फ इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्किल. और लास्ट में जो मैं अपना पॉइंट रिपीट करने जा रही हूँ कि आपका सबसे बड़ा हथियार, आपका सबसे बड़ा टूल, वोकैबुलरी से भी बड़ा, आपकी इंट्रापर्सनल टॉक से भी बड़ा, वो आपका अपना सेल्फ है. आप स्माइल कीजिए, अपने हाथों को फोल्ड कीजिए, थ्रो बैक योर शोल्डर्स, लुक इनटू पीपल्स आईज एंड बट डोंट स्टेयर एंड डोंट ब्लिंक. भारतवर्ष के लोगों की एक समस्या है, वो स्टेयर बहुत ज्यादा करते हैं. उन्हें समझ नहीं आता कि स्टेयरिंग इज बैड कम्युनिकेशन. और यदि आंखों को बहुत मिचमिचाएं तो वो भी बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्टिंग होता है. और एक आखिरी और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत से स्टूडेंट्स मेरे पास आते रहते हैं, एक्स स्टूडेंट्स बन के आते हैं, और कई बार वो जॉब्स में चले जाते हैं और वो कहते हैं कि मैम हमें ना इंग्लिश बोलनी है, धारा प्रवाह, हम इंग्लिश नहीं बोलेंगे तो हमें बुरा लगेगा. तो मैं उन्हें कहती हूँ, प्लीज गलत इंग्लिश बोलिए, प्लीज ग्रामर को इग्नोर कीजिए. अगर आपको नहीं आती तो, आपको किसी शब्द का उच्चारण नहीं आता तो प्लीज आप गलत बोलिए. मैं ये नहीं कह रही हूँ कि गलत बोलना ठीक है, मैं ये कह रही हूँ कि ना बोलने से गलत बोलना बहुत अच्छा है. और मैंने देखा है कि मेरे कुछ स्टूडेंट्स या मेरे कुछ जानकार आज इनकम टैक्स ऑफिसर लगे हुए हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट जगहों पे लगे हुए हैं. उनकी अंग्रेजी आज भी खराब है, लेकिन उनका कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा है, क्योंकि कम्युनिकेशन अंग्रेजी या हिंदी या फ्रेंच या चाइनीज या स्पेनिश तक लिमिटेड नहीं है. कम्युनिकेशन मीन्स टू बी एबल टू कन्वे योर फीलिंग्स, योर आइडियाज विद और विदाउट लैंग्वेज. तो मुझे उम्मीद है कि मेरा छोटा सा प्रेजेंटेशन आपको पसंद आया होगा, और मैं रिक्वेस्ट करूंगी डॉक्टर पारुल को कि वो आज के वेबिनार को आगे बढ़ाएं. थैंक यू सो मच. Thank you, ma'am, for sharing certain important tips with our students. I hope this information will be of great help to all of us. It is beneficial for us also as teachers, that how to be interactive and connected with our students. Thank you once again, ma'am.